So simply we have to start second part from 7th chapter, Glimpses of India. And in Glimpses of India, at first we have studied about Baker from Goa. उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. From today we have to start the second part, and the name of the second part is Coorg. As I have told you on the very first day, that Coorg is the small district in कर्नाटक. ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है. नेचुरली इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ी एरिया, इट इज़ अ हिली प्लेस. तो आज हम लोग कुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के ट्रेडिशन को पढ़ेंगे, कल्चर को पढ़ेंगे, वो सब पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ऑथर कहता है मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have been drifted from the kingdom of God. So the author said that Coorg is situated between Mysore and coastal town of Mangalore. What do you mean by coastal town of Mangalore? समुद्र के किनारे. सो समुद्र के किनारे मैंगलोर एंड मैसूर के बीच में there was a place, and the name of that place was Coorg. And that place is so beautiful that it has been compared to the piece of heaven. It is so beautiful that it has been considered that it is a piece of heaven. And where was heaven? Heaven is the kingdom of God. So it seems as if that this piece is so much beautiful that it is just like the heaven, and must have been drifted, means brought. It must be brought from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. So this hills is inhabited by the land of rolling hills. Means Coorg, what did the Coorg have in its surrounding? Rolling hills means a number of hills. So the Coorg have a number of hills in its surrounding. And this place is inhabited by, means who lived there? Proud race of martial men. Who is martial men? Warriors. So this place is very beautiful, and this is a hilly area. And in this place who used to live? Proud race of martial men, beautiful women, and number of wild creatures also is found there. Coorg or Kodagu. Though its name is Coorg, but someone used to call it Kodagu. It is the smallest district of Karnataka. तो जो क्या Coorg है, Kodagu है, it is the smallest, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का. Is home to evergreen rainforest. Is home to evergreen rainforest मतलब a number of evergreen rainforest has been found. बहुत सारे रेन फॉरेस्ट का मतलब एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार है ना. तो वहाँ पे क्या सदाबहार के बहुत सारे पेड़ हैं जो वहाँ रहते हैं. स्पेसीज बहुत सारे स्पाइसेस, मसाले हैं, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. और क्या होता है वहाँ पर? कॉफ़ी प्लांटेशन होता है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. सो हाउ मच परसेंट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन कन्वर्ट बाई? Yes, 30% has been covered by forest, evergreen rainforest. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. Means during the monsoons, means when it is the rainy season. When it is the rainy season, so it keep away many visitors. Means many visitors, the person who used to visit the place. It is naturally beautiful. तो बहुत सारे लोग इस जगह को देखने आते हैं, but they couldn't come during the rainy season, monsoon, because it pours enough. It pours enough means it rained heavily during the rainy season. There was huge rain, and because of that rain, the visitors could not come there during the monsoons, during the rainy season. The season of joy commences from September and continues till March. So the season of joy, the season of happiness, the season of visitors has been started from March and continued till September.
तो मार्च से शुरू होगा, सितंबर से शुरू होगा, मार्च तक चलता है। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मीजर एंड ड्यूरिंग दीज मंथ्स द वेदर इज परफेक्ट। इन मंथ्स में क्या होता है, जो मौसम होता है वो कैसा रहता है, बिल्कुल परफेक्ट रहता है, बहुत अच्छा रहता है। बिकॉज देयर इज सम शावर होती है यहाँ पे इस सीजन में। शावर किसको बोलते हैं, हाँ, लाइट रेन, हल्के फुल्की बारिश होती है, इसलिए मौसम बहुत अच्छा रहता है। एंड द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी एंड देयर इज सो मच कॉफ़ी प्लांटेशन दैट व्हेन यू विल वॉक फ्रॉम देयर यू विल गेट द स्मेल ऑफ कॉफ़ी जस्ट लाइक द पेपरमेंट, है ना। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. And it said that you would see the coffee plantation. You would see the colonial bungalows, means officers' bungalows. Where under the tree canopies in prime corners, in main corners under the trees, you will see the coffee plantation. You will see the houses of the officers. The fastly independent people of Coorg are possibly of Greek and Arabic descent. So the fastly independent people means the people who live in the Coorg, they are completely independent. ये सब बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं. And it has been considered that they are either Arabs, means their descendant, their forefathers, पूर्वज, their descendant are either Arabs or they belongs to Greek. कि इसके जो पूर्वज हैं या तो वो अरब के हैं या फिर ग्रीस के हैं. और ये क्यों कहा जाता है, एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड देयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल. एंड व्हाई दे हैव बीन सेड दैट दे आर द डिसेंडेंट ऑफ अरब्स एंड ग्रीक्स. सो देयर आर सम स्टोरीज अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी दैट प्रूव्ड दैट देयर forefathers are Arabs, and according to the story that when Sikandar came to India, Alexander, he came to India, and after attack from here, after defeated by Chandragupta Maurya, he was going back, but one of his army forgot the way. उसकी जो पूरी आर्मी था उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो था वो क्या हुआ, he forgot the way, वो रास्ता भूल गया. And when return became impractical, means when it has become impossible for them to go back, then they settled there. तो वहीं रहने लगे. These people married amongst the locals and these soldiers. These people married to the local girls. वहाँ की जो local girl थी उससे उन्होंने शादी कर ली. And their culture is apparent in the martial tradition. And now their culture, which culture? Arabian culture. The Arabian culture could be seen in their martial ट्रेडिशन, मीन्स युद्ध करने की कला में उनके ये दिखता है, मैरिजेज में ये दिखते, एंड रिलीजियस राइट्स, और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो सब में उनका कल्चर किससे मिलता जुलता है, अरब से मिलता जुलता है. तो इसीलिए क्या लगता है कि ये लोग कहाँ के हैं, अरब के. बट द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग as the theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waistbelt worn by the Kodabuj. And according to the second story, means ये जो स्टोरी थी ऊपर वाली अलेक्जेंडर वाली, it shows that they are from Greek. अलेक्जेंडर वाली वो क्या है, वो ग्रीक को. Now the second story which justify that they are from Arab, and the story is that they used to wear a long black coat with an embroidered waist belt. कि जो यहाँ के लोग हैं वो क्या पहनते हैं, a long black coat पहनते हैं, और कमर में क्या लगा होता है, एक बेल्ट लगा होता है. एंड ऑल हैव बीन एम्ब्रॉयडर्ड, और सब में क्या निकली होती है, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, डिजाइन निकली होती है. known as कुपिया, and this was known by the name of कुपिया, and it resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. और ये जो ड्रेस पहनते हैं, that dress resembles with the कुफिया which was worn by Arab people. तो जो अरब के लोग हैं वो क्या पहनते हैं, कुफिया,
और देखने में बिल्कुल ऐसी है। ये लोग भी जो ड्रेस पहनते हैं वो बिल्कुल देखने में किसके जैसी है, अरब के जैसी है जैसे। और बस इसका नाम क्या है, कुफिया रखा हुआ है। तो ये लगता है कि ये लोग क्या है, दे आर फ्रॉम अरब। कोट सुनिए, अरब को ही बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के अनुसार क्या लगता है इनके पूर्वज कौन थे, ग्रीक्स। एंड अकॉर्डिंग टू देयर ड्रेसिंग सेंस, अरब्स। ठीक है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दीज कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी मीन्स दे आर वेरी हॉस्पिटेबल। मेहमान नवाजी का उनके यहाँ बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। And they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers, and they are always ready to tell you a number of stories regarding the bravery of their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army, and if we talk about the Kurg regiment, so it has been considered the most decorated army. Most decorated army से मतलब decorated से क्या मतलब है, कपड़े। आर्मी डेकोरेट किससे होती है, ऑफिसर से डेकोरेट किससे होता है, विद द ब्रेवरी मेडल्स। यूनिफॉर्म तो सब पहनते हैं, जिसके पास जितने ज़्यादा ब्रेवरी मेडल्स हैं वो एक प्रकार से उतना ज़्यादा डेकोरेटेड है। तो जो कुर्ग आर्मी सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड में सबसे ज़्यादा ब्रेवरी मेडल्स किससे मिले हुए हैं, कुर्ग आर्मी को मिले हुए हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। जैसे अभी कौन है आर्मी चीफ, जनरल विपिन रावत। तो अब CDS हो गए, चीफ डिफेंस सर्विसेज में। नरवणे, BR नरवणे। हाँ मनोज मुकुंद, MM नरवणे है सर नेम। अभी वो नेपाल की यात्रा पे भी गए हैं 2 दिन की, तो अभी नरवणे हैं। इससे पहले थे विपिन रावत। तो विपिन रावत अब CDS बन गए हैं। CDS एक नई पोस्ट जनरेट की गई है जो तीनों एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों को हेड हो गया। तो जो पहले हमारे आर्मी चीफ थे वो एक कुर्गी थे और उनका नाम क्या था, जनरल करियप्पा। इवन नाउ कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। कहता आज भी, इवन टुडे, आज भी जो कोडाबू हैं, जो कुर्गी पीपल हैं, कि वो लोग हैं हु कुड कैरी फायर आर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस, बिना किसी लाइसेंस के गन को, पिस्टल्स को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। द रिवर कावेरी, एंड देयर वाज अ रिवर आल्सो एंड द नेम ऑफ द रिवर वाज कावेरी, ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग्स। और उसे पानी कहाँ से मिलता है, हिल से और फॉरेस्ट से इसे पानी मिलता है। महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। तो महासीर क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ अ फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर। अबाउंड मीन्स फाउंड इन ग्रेट क्वांटिटी। जो महासीर नाम की मछली वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे मिलती है। किंग फिशर्स डाई फॉर देयर कैच। और जो किंग फिशर होते हैं डाई फॉर देयर कैच मतलब पकड़ने के लिए तुरंत डाइव करते हैं। वाइल्ड स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्सली इवन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ। जबकि स्क्वायरल्स जो हैं वो लंगूर है, वो पेड़ पर ऊपर बैठे रहते हैं और खा के कैसे पार्सली ईटन, आधा खाया आधा पानी में डाल दिया। किस लिए, फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट ऑफ इन द क्लियर वाटर। जिससे वो क्या एंजॉय कर सके, एक तो स्प्लैश ऑफ वाटर, पानी में डाल छप टप बोलता है ना, और रिपलिंग इफेक्ट, जब पानी कुछ डाल देते पानी चलता है ना, तो उस पानी को एंजॉय करने के लिए जानबूझ के पानी में डाल देते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ। और एलिफेंट एंजॉय करते क्योंकि उन्हें कौन नहला रहा होता। एंड स्क्रब इन द रिवर बाय देयर महावत। जो हाथी को कंट्रोल करता है उसे क्या बोलते हैं, महावत। तो वो वहाँ ले जाके उसे नहलाता है, स्क्रब करता है, उसकी बॉडी को रगड़ता है, तो हाथी भी वहाँ होते हैं। The most laid back individual become converts to the life of high energy adventure। कहते हैं यहाँ पर अगर आप मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल मीन्स ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो कैसे होंगे, इजी गोइंग, अरे एक काम कर आराम से लेटर, वो लोग भी आके यहाँ कैसे बन जाते हैं, हाई एनर्जेटिक, जो एडवेंचरस काम करने लगते हैं। और एडवेंचर क्या क्या करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं,
एक राफ्ट होता है ना छोटा सा प्लेटफॉर्म जैसा, उस पर क्या करते हैं, और कैनोइंग करते हैं। एक लार्ज नैरो ऐसी बोट होती है ना पतली सी, उस पर चल के जाते तो कैनोइंग करते हैं। रैपलिंग करते हैं, रैपलिंग का मतलब रस्सी से घिसकते हुए हवा से जाते हैं, उसको बोलते हैं रैपलिंग। रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन बाइकिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो आदमी यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पे जो लेड बैक इंडिविजुअल इजी गोइंग भी आते हैं वो भी हाई एनर्जेटिक हो जाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। वॉकिंग ट्रेल्स जिसको पगडंडियाँ बोलते हैं, जैसे जहाँ घास है उस घास पे चलना शुरू कर दो, बराबर उसी घास से निकलो, कुछ दिन बाद यहाँ जाते वैसे बहुत ही खूबसूरत रास्ता लगता है वो। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पर खूबसूरत ट्रैकर्स हैं, रास्ते हैं ट्रैकर्स के लिए। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी एंड हु वुड गेट यू देयर? बर्ड्स, बटरफ्लाइज, लंगूर्स, ये सब होंगे जो आपको कंपनी देंगे वहाँ पर। Macaques, Malabar squirrels, langurs and slender lords keep a watchful eye from the tree canopy। और आप देखेंगे ये सब क्या होते हैं, ट्री कैनोपी, पेड़ पर बैठे रहेंगे, वहाँ से आप पर नज़र रखते हैं, चाहे स्क्वायरल हो, है ना, चाहे वो मंदार हो, ये सब वहाँ लंगूर हो, ये सब वहाँ से बैठ के आप दुबले पतले। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। और कहता मैं जब भी जाता हूँ किससे दूर रहना पसंद करता हूँ, वाइल्ड जंगली जानवरों से दूर रहना पसंद करता हूँ। द क्लाइंब टू द ब्रिमगरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। कहते जब आप कहाँ पहुँच जाएंगे, जब आप पीक पर पहुँच जाएंगे ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा किसका, मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, क्योंकि ऊपर जहाँ नीचे धुंधला दिखता है ना, तो ये जो मिस्टी लैंडस्केप दिखता है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गात्मा। और फिर 80 का ब्रिज क्रॉस करके पहुंचेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 64 एकड़ का एक आइलैंड निसर्गात्मा, वहाँ पहुंच जाएंगे। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। और यहाँ पर आपको कौन मिलेगा, बुद्धिस्ट मॉन्क मिलेंगे। और ये जो जगह है ये तिब्बतन जो रिफ्यूजी हैं जो वहाँ से आए उनके लिए, उनके रहने की सबसे बड़ी जगह है। एट नियर बाई बायला कुप्पे। और ये जगह कहाँ पर है, बायला कुप्पे के पास है। ये जब बोनस मीन्स आपको वहाँ तिब्बतन भी देखने को मिल जाएगी, तो आपके लिए बोनस। द मॉन्क्स, और जो साधु होंगे वो आप कैसे देखेंगे, रॉ रेड कपड़ों में, ओचर हुए गेरुए कपड़ों में होंगे, एंड येलो रोब्स पीले कपड़ों में होंगे। आर अमंगस द मैनी सरप्राइज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द मिस्टर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन द वर्ल्ड। और ये जो महात्मा होते हैं ये हमेशा उन लोगों को ढूंढते हैं जो इंडिया की आत्मा को जानने आए हैं। मिस फॉरेनर्स, ये हमेशा फॉरेनर्स की तलाश में रहते हैं कि फॉरेनर्स मिल जाए तो उनसे कुछ ले पाएँ, तो ये हमेशा फॉरेनर्स को ढूंढते रहते हैं। इस प्रकार से जो कुर्ग है नेचुरली कैसा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है पहला, वेयर इज कुर्ग? कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। What is the story about the Kodagu people descent? ये अभी मैं आपसे लिखवाता हूँ, लिख के दिखाओ। What are the some of things you can know about today? The people of Kurg, कैसे हैं लोग कुर्ग के? They are very hospitable, they are very brave, वो सब इसमें लिखेंगे। The main crop of Kurg is spices and coffee. The sports is offers to tourists. कैनोइंग, रैपलिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, वो सारे। द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन द कुर्ग, बीज, बर्ड्स, बटरफ्लाई, मैकाकेज, मालाबार, ये सारी चीज़ें। तो अब एक काम करिए, हो अभी ये हो लॉन्ग वाला क्वेश्चन लिखिए, लॉन्ग में लिखना सेकंड, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडागु पीपल डिसेंट। तो ये अभी नोट पे लिख के दिखाओ।